I thank God what we heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो हमने आज सुना उसके लिए। We heard about how pride can take a person, a humble person, to such a level. और हमने देखा कि कैसे घमंड जो है एक व्यक्ति को ऐसे स्तर पर ले जा सकता है। We saw about Satan, how he became Satan when he was a angel of praise. और हम देखते हैं कैसे शैतान शैतान बन गया जबकि वो एक स्वर्गदूत था। About Saul, who was a humble person, didn't want to become a king, but later he became a king and had a pride. और सॉल भी वो राजा बनना भी नहीं चाहता था, बाद में वो राजा बना और फिर वो घमंड से भर गया। There are many times I think I was comparing while I was listening, I was just thinking about me. It's not about others, but we hear this so many times. और जब मैं आज सुन रहा था तो कई बार मैं अपनी तुलना उसके साथ कर रहा था, क्योंकि हम ये कई बार सुनते हैं। We have heard so many times about pride, like about Saul and about these examples that have given in the Bible. हमने घमंड के बारे में कई बार सुना है, सॉल के बारे में, और ऐसे जो अन्य उदाहरण है जो बाइबल में दिए गए हैं। These are all to warn us and to even help us, that we don't walk that way. और ये सारी बातें इसलिए लिखी गई है हमें चेतावनी देने के लिए और ये निश्चित करने के लिए कि हम उस मार्ग पर न चले। God loves us so much that He doesn't want His children to go astray. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भटक जाए। If you read about Saul, it says when verse 70, it says in 1 Samuel 16:14. और हम शॉल के बारे में पढ़ते हैं पहला शमूएल 16 उसके 14 वचन में। It says, now the spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। This happened when Saul didn't listen to God, and neither was he had a love for God. और ये तब हुआ जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। I was always also meditate on what happens. Like says, the spirit of torment came into him. और मैं ये भी मनन कर रहा था कि उसमें एक दुष्ट आत्मा है जिससे वो घबराने लगा। When that spirit of torment comes in, there is unrest in our lives. और जब ऐसे घबराना या पीड़ा की एक आत्मा आती है तब हमारे जीवन में हर समय एक बेचैनी होती है। That what is going to happen tomorrow, or things, the fear about things that are going to happen. कि कल क्या होगा और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसी बातों का भय हमें लगने लगता है। You don't trust people in front of you. You feel somebody, these people are against me. All these thoughts, all the evil thoughts that come from this torment. और हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला मुझे चोट पहुंचाएगा, मुझे तकलीफ देगा, और ऐसे सारे विचार आने लगते हैं जब हम घबराने लगते हैं या पीड़ा महसूस करने लगते हैं। It's because the spirit of God has left and the spirit of torment has come. वो इस वजह से क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़कर चले जाता है और एक दुष्ट आत्मा हमें घबराने या पीड़ा देने लगता है। But there's other part in the Bible, which you read in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. पर इसके एक दूसरी बात हम पढ़ते हैं गलातियों 5 उसके 22 और 23 वचन में। It speaks about the fruit of the spirit. वहां पवित्र आत्मा के फल के विषय में लिखा है। It says the fruit of spirit of love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. और वहां लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। The first three things are that there is love, there is joy and there is peace. और पहली तीन बातें हैं प्रेम, आनंद और शांति। Like there is joy, there is always love for others in my heart, there is joy and there is peace. And there is no torment in my life, but there is peace because the Spirit of God is there in our lives. और सबके विषय में मेरे हृदय में प्रेम है, मेरे जीवन में आनंद है और मेरे जीवन में शांति है, कोई पीड़ा नहीं है। So now, God has, when can I have this Spirit? Only when I am humble. कब मेरे पास ये पवित्र आत्मा हो सकता है? केवल तब जब मैं नम्र हूँ। God,
he likes all his children to be with him, to be humble. परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे जो बच्चे हो वो नम्र बने। Like there's a verse which says, we are like this earthen vessels. और जैसे एक वचन कहता है कि हम मिट्टी के बर्तनों समान है। What is great about earthen vessels? It's made of mud. You leave it, it'll break. और मिट्टी के बर्तनों के विषय में क्या उनके बारे में क्या इतना विशेष है? वो तो मिट्टी से बने हुए हैं, वो आसानी से टूट सकते हैं। But it says these vessels are used to carry the glory of God in it. पर वही लिखा है कि ये जो बर्तन है, ये जो पात्र है मिट्टी के, इन्हीं में परमेश्वर की महिमा होती है। That the work of God can be seen in our lives. और परमेश्वर का काम हमारे अंदर दिख सकता है। It's not that vessel is important, but God is more important here. ये नहीं कि वो पात्र, वो बर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर परमेश्वर अधिक महत्वपूर्ण है। Read Matthew chapter 3. हम मत्ती उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। You read about John. हम यहाँ यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं। And if you read the verse, the first part of it says, the heading of the chapter says, John prepares the way for Jesus. और उस वचन का शीर्षक इस प्रकार है कि यूहन्ना यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है। He says, that he went to the people and he spoke about repentance and baptized them. और वहां लिखा है कि वो लोगों के पास जाता है और केवल मन फिराव का प्रचार करता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। But when it comes to change, he speaks about Jesus. सॉरी ब्रदर। When it comes about a change in lives, he speaks about Jesus. और जब जीवन में बदलाव के विषय में बात आती है तो वो यीशु के बारे में बात करता है। He says that I am only baptizing with water, but to read verse 11, I said I baptize you with water to show that we have changed your heart and lives. और वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन और हृदय बदल जाए। But there is someone coming later who is able to do more than I can. पर वो कहता है मेरे बाद कोई आने वाला है जो मुझसे भी अधिक कर सकता है। I'm not good enough to be the slave who takes off his sandals. मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उसके जूते के बंधन को छुड़ाऊं। This person, the man of God, he just knows his way, like he's just come to make the way, and you can see the humility in John. और ये परमेश्वर का ऐसा जन था जो केवल मार्ग तैयार करने के लिए आया था, और हम सचमुच यूहन्ना की नम्रता को वहां देख पाते हैं। God also has a plan for our lives. He's prepared something. He has done something that he has planned for us. परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए एक योजना है, उसने हमारे लिए कुछ तैयार किया है, हमारे लिए कुछ सोच कर रखा है। Sometimes I believe it's God help me Lord to be a sweeper, to clean that way for you. और मैं कई बार सोचता हूँ प्रभु मुझे वो झाड़ू लगाने वाला होने दे जो तेरे लिए रास्ता साफ करके तैयार करता है। It's not about pleasing others, but its main thing is like I want to love and not please you and you alone. ये वो नहीं कि हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं, पर परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ और तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। David was called a man after God's own heart. और दाऊद को एक ऐसा मनुष्य कहा गया जो बिल्कुल परमेश्वर के हृदय समान था। He did the worst of the things. और उसने बड़ी ही बदतर बातें की थी। But yes, but any time he came to know, he repented. He saw that his relation with God never broke. His fellowship with God never broke. पर जैसे ही वो जान गया उसकी गलती क्या है तो वो तुरंत उसे मान लेता था और परमेश्वर के साथ उसकी संगति नहीं टूटती थी। He was accept to take the punishment also. और वो दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार होता था। Where you see Saul opposite to it. और हम देखते हैं कि शौल जो था वो बिल्कुल इसके विपरीत था। When God removed his anointing, he didn't want the people to know. जब परमेश्वर ने उसके अभिषेक को निकाल लिया तो वो ये नहीं चाहता था कि लोग इस बात को जाने। There are two things. One thing is I live before God or I live before people. और दो बातें होती है, एक या तो मैं परमेश्वर के सामने जीता हूँ या तो मैं लोगों के सामने जी रहा हूँ।
This verse in 1 John chapter 2 और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय and verse 15 to 17. 15 से 17 वचन। Says, do not love the world or anything of the world, but if anyone loves the world, the love of the Father is not with him. तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। For everything in the world is the craving of a sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does comes not from the Father but from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। It's clear says here that shouldn't love the world or the things of the world. Because if I love these things, the love of the Father is not in me. और यहाँ लिखा है ना तो मुझे संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना है। अगर मैं ऐसा प्रेम रखता हूँ तो फिर पिता का प्रेम मुझ में नहीं है। It's really have to, every day it's about judging my own self. और ये हर दिन मुझे अपने आप को जांचना है, मेरा अपने आप का न्याय करना है। Do I really love God? I love you, or I love things of this world? क्या मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? क्या मैं इन संसार की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ? Something that takes me away from God is the love of the world. ऐसी कुछ बातें जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाती है। ब्रदर कैन यू रिपीट? Something that takes me away from the love of God is from the world. जो कुछ मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाता है वो इस संसार की ओर से है। That say particularly when I should come back to God and repent. God is very good to really forgive me and take me back on the track. और अगर मैं अपनी मन फिराकर परमेश्वर के पास लौटने के लिए तैयार हूं तो परमेश्वर सचमुच भला है मुझे वापस स्वीकार करने के लिए। We pray God that God will help us to first learn from Him. Jesus says, "Learn from me, from I am humble and gentle." और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि हम उससे सीख पाए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। Listen this word so many times, but it first is I going and learning from Him, not just listening, but learning from Him to be gentle. और ये वचन हमने कई बार सुना है पर ये नहीं कि मैं जाकर यीशु को सुनता हूँ पर यीशु मसीह से सीखता हूँ नम्र होना और सौम्य बनना। God is always ready to talk to us, sort things out. First is I go and I plead with Him, I speak with Him. और परमेश्वर निरंतर तैयार है मुझे समझाने के लिए, सिखाने के लिए, मुझे जाकर उससे बात करनी है। When Jesus will I come at the door and knock. The one who opens up, I'll come and dine with you. और यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कुछ मेरी आवाज सुनकर खोलता है मैं उससे अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। Every day, God is knocking at my door, speaking to me. It's my thing that I open that door, that He'll come in. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और अगर मैं अपने हृदय के दरवाजे को खोलूंगा तो वो अंदर आकर मेरे साथ भोजन करेगा। Even the second time Jesus speaks about our body being a temple of God. और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होने के विषय में भी लिखा है। I have to keep that temple clean every day. और मुझे हर दिन उस मंदिर को साफ बनाए रखना है। It says if that temple is unclean, it says there's one evil spirit that is staying whether we clean it, and if I don't keep clean, that one evil spirit will go back and bring another 7 spirits. और जैसे यीशु ने कहा अगर मेरे हृदय के अंदर वो एक दुष्ट आत्मा भी होगी, मैं उसे साफ नहीं रखता इसलिए, तो वो एक दुष्ट आत्मा जाकर 7 अन्य दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगी। If I take this thing, I take this one life for granted, and I don't listen and I'm not obedient, my life may drastically change and become very bad. अगर इस एक जीवन जो मुझे मिला है उसको मैं अगर हल्के में लेता हूँ और ऐसे ही मान लेता हूँ तो फिर मैं उसको उपयोगी नहीं रख सकता। May God really help us to listen to Him, to learn from Him, that our lives can change.
परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम उसको सुने और उससे सीखे, ताकि हमारा जीवन उसके लिए उपयोगी हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने जो अवसर मेरे जीवन में दिया, और मैं कुछ समय से अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जब प्रभु के नजदीक आने लगा तो अपने जीवन में कहीं कमी घटी अपने जीवन में देखी, लेकिन प्रभु ने निरंतर मुझसे वचनों से बात किया। स्पेशली मैं अपने समय को लेके कभी भी एक सीरियसनेस मेरी लाइफ में नहीं थी, और मैं हर चीज को एट अ टाइम एक साथ करने की सोचता था। लेकिन प्रभु ने जो वचनों से प्रभु ने निरंतर मुझसे बात की, वो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली जब मैं वचन को सिर्फ एक रेगुलर बेसिस में या एक जनरल वे में पढ़ता था, तो कभी भी मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, और मैं उसको एक बोलते हैं ना कि एक रेगुलर का मुझे पढ़ना है या फिर मुझे सुबह एक वचन पढ़ना है ऐसे। लेकिन जब प्रभु ने जब मुझे दिखाया कि मैं अपना समय भी जो प्रभु के लिए सोचा है या मैं करूंगा, उसमें भी मैं टाल मटोल करता था या फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करता अपनी बुद्धि से। मेरे को एक वचन बहुत अच्छा लगा जब मुझको जब जीवन में दिखाया मेरी गलती को, वो है एफिसियों 5:16, अपना वक्त का सही इस्तेमाल करो करके जो एक वचन जो मेरे जीवन में आया उस दिन मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये वचन मेरे लिए क्यों है, कि मुझे ये वचन ही क्यों दिखाया गया। और मैं उस चीज पे जब मनन निरंतर आगे मनन करता रहा तो प्रभु ने कई बातें मेरे जीवन में दिखाई कि मैं कई चीजों में कई क्षेत्रों में बहुत गलत कर रहा हूँ। इस वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो वो एक वचन जो था ना कि मेरे जीवन में जो मुझे अवसर प्रभु ने दिया है, ये जीवन दिया है कि इसके द्वारा प्रभु के नाम के वचन को मैं आगे बढ़ाने का जो मेरा प्रभु का जो उद्देश्य मेरे जीवन से है, मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर रहा हूँ। तो और मैं ये देखता था कि मैं हरदम यही एक एक्सक्यूज मारता था कि एक सही वक्त आने पर मैं ये काम करूंगा, और मुझे नहीं पता था कि सही वक्त कब है। और मुझे प्रभु ये बताना भी चाह रहा था कि अगर मैं ये सोच भी रहा हूं तो मैं ये काम कभी भी शुरू नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। तो ये एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने जो वचन मुझे उस टाइम पे जो दिखाया था, जो मुझे सोचने पे एक मजबूर किया था, वो सबोपदेशक चैप्टर 11 वर्स 4 था। उसमें ये लिखा था कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बो ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लावण्य ना पाएगा। क्योंकि उसमें साफ लिखा है जो हवा को रुख को देखता हुए बीज नहीं बोएगा, और जो बादलों को ताकता हुए फसल नहीं काटेगा। इसका जो रिलेटेड वर्ड वो है मीनिंग। तो मैं हरदम एक सही समय या सही वक्त के बारे में सोचता रहता था कि सही समय आएगा, सही समय आएगा, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस वे में ये चीजें सोच रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन में दिखाया कि मैं कितने गैर जरूरी बातों में अपना समय और अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहा हूँ, और अपने जरूरी काम को भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों है मेरे जीवन में, प्रभु से मैं हरदम ये प्रश्न पूछता रहता था, और प्रभु मुझे दिखा भी रहा था कि मैं अपनी कई चीजों को लेके वेस्टेज ऑफ समय को कितना वेस्ट कर रहा हूँ, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उन पे बहुत मेहनत करे जा रहा हूँ। और मैं प्रभु से इस चीज को मांग भी नहीं रहा कि प्रभु से समय पूछ भी नहीं रहा कि प्रभु ये सही जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है क्या। तब प्रभु ने मुझे एक और वचन से मुझे दिखाया, वो है फिलिपियों 1:10। उसमें ये साफ लिखा है ताकि तुम पहचान सको ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या है, जिससे कि मसीह के दिन तुम्हारे अंदर कोई खामी ना हो और तुम दूसरों के लिए विश्वास में बाधा ना बनो। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में कई ऐसी चीजों को चुनते हैं या फिर हमारे चीजों को हम अपने जीवन में अमल में लेके आते हैं, जो हमारे आसपास के लोग या हमारे परिवार के लोगों के लिए हम रुकावट का कारण बनते हैं। तो प्रभु ने उस वक्त मेरे अपने कामों पे ध्यान देने का जो इम्पोर्टेंस मुझे बताया कि क्या है, और मैं अपना समय किस रीति से वेस्ट करे जा रहा हूँ। और मैं अपना जो प्रभु के जो कार्य है, प्रभु के लिए जो समय है, उसको मैं उसी वक्त, मान लो जैसे मैं कोई वचन पढ़ रहा हूँ या मैं किसी चीज से मेडिटेट कर रहा हूँ, तो उसी वक्त मेरा फोन की घंटी बजना, या फिर मेरे ईमेल
क्योंकि मैं फोन हरदम ऑन रहता है तो मैसेजेस आना, तो मैं उस चीज को, प्रभु के वचन को उसी वक्त छोड़ के और मैं उस चीज पे रिप्लाई करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज का इम्पोर्टेंस मेरे जीवन में मुझे नहीं उस टाइम पता था कि मुझे प्रभु के लिए समय का इम्पोर्टेंस, समय जो है उसको देना है, या फिर जो जो सांसारिक काम है या फिर मेरे अपने बिजनेस से रिलेटेड काम है उसको इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे निरंतर अपने वचनों से तृप्त रखा और मेरे जीवन में कई कमी घटी जो जो हर दिन मैं देखता हूँ अपने जीवन में, प्रभु उसको मुझे को दिखाता रहा, पॉइंट आउट करता रहा। और जैसे हम देखते हैं कि हम जब कोई सफर करते हैं तो हम एक सोच के निकलते हैं कि हम इस मंजिल पे हमें पहुंचना है, और जब हम उस मंजिल की ओर निरंतर जब बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावट आती है। हम कहीं बाय रोड कहीं जा रहे हैं तो हम उसी वक्त दूसरा रास्ता लेने के लिए सोचते हैं। हम उसी वक्त कि हमें उस मंजिल तक तो कैसे ही पहुंचना है, तो हम दूसरा कोई रास्ता लेके पहुंचते हैं। तो प्रभु ने मुझे समझाया कि उसी तरह हमें अपने जीवन में कई फैसले उस तरह ध्यान रखते हुए लेना चाहिए कि हमारी जो मंजिल है वहां कितनी भी पहुंचने में हमें कितनी भी मुश्किलें या रुकावटें आए तो हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और वो हमें प्रभु ने जो रास्ता दिखाया है प्रभु ने वचनों के द्वारा कि हम निरंतर उस रास्ते की ओर निकल सके। और मैं इस एक वचन पढ़ के मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। वो गलातियों की किताब उसका 6 आयत और 9 वचन है, जिसमें प्रभु ने लिखा है कि इसलिए आओ हम बढ़िया काम करने में हार ना माने, क्योंकि हम हिम्मत ना हारे तो वक्त आने पर जरूर फल पाएंगे। प्रभु का वचन जो भी प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आप लोगों से शेयर किया। प्रभु आप लोग निरंतर में हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और मेरे जीवन के लिए भी कि प्रभु की चीजों को मैं अच्छे से और ढंग से समझ सकूं और प्रभु की महिमा हो। By what we heard today, और मैं बहुत ही आशीषित हुआ जो आज मैंने सुना उससे, especially that word from Job chapter 40. और खास करके अय्यूब की पुस्तक उसके 40 अध्याय से। Job is telling to God. Job is responding to God. और अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर को उत्तर देता है। Job chapter 40 verse 2. और अय्यूब 40 अध्याय उसका वचन 2, Sorry, verse 4. वचन 4। I am insignificant. देख मैं तो तुच्छ हूँ। I am insignificant. और मैं तुच्छ हूँ। What can I reply to you? और मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? I lay my hand on my mouth. और मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूँ। So this is a good attitude we can seek to have in our life. और ये बहुत ही अच्छा स्वभाव है जो हम हमारे जीवन के अंदर रखने की खोज कर सकते हैं। If you are really growing spiritually, और यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, and if you are becoming slowly towards the nature of Jesus Christ, और हम धीरे धीरे करके यदि यीशु मसीह के स्वभाव के और करीब आते जाते हैं, I think we will be able to tell ourselves that I am insignificant. तो हम बढ़ते कदम पर अपने स्वयं के बारे में ये कहने पाएंगे कि मैं पूरी तरह से बहुत ही तुच्छ या बहुत ही अयोग्य हूँ। And not only that, put my hand on my mouth. और मैं अपने हाथ को अपने मुंह में रखूंगा। I have nothing to say. और मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं होगा। I have nothing to defend. और मेरे पास बदला या सामना करने के लिए कुछ नहीं होगा। I am not arguing or anything, speaking on my behalf. और मैं अपने स्वयं के बारे में सफाई में विवाद या कोई ऐसी बातें नहीं रखने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे पास। When we think that we are somebody, और जब हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ या मेरे अंदर कुछ खास है, we will have expectation from others. तब हम और लोगों से एक अपेक्षा रखने लगेंगे। Sometimes very often it may be very secret. We will not say with our mouth. और कई बार होता है कि बहुत ही गुप्त रीति से ये चीजें हमारे अंदर होती है, हम अपने मुख से शब्दों से इन बातों को नहीं कहते We हैं। can expect others to serve us, और हम ये अपेक्षा करते कि और लोग हमारी सेवा करें, do various things for us. और अलग अलग चीजें हमारे लिए करें। In other, we want others to serve us. और ये चाहते कि हम लोग हमारे लिए हमारी सेवा करें, Because we think that we are somebody significant. और हम ये सोचते कि हम कुछ बहुत ही है, I deserve respect. और मैं एक आदर को चाहता हूँ या आदर के योग्य हूँ।
For example, when we celebrate birthdays, और जब हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, this thought comes to me. और ये विचार मेरे मन में आता है, Do I expect others to remember my birthday? और क्या मैं और लोगों को मेरा जन्मदिन याद करने के लिए अपेक्षा उसकी करता हूँ, And I expect others to greet me on my birthday. और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरे जन्मदिन पे वो मुझे फोन करे या मुझे ग्रीट करे। So I look at myself मैं अपने आप को देखता हूँ and I sincerely desire my life should be free from such expectations. और मेरी सच्ची जो इच्छा है कि मेरे जीवन में ऐसी हर एक अपेक्षाओं से मैं पूरी तरह से आजाद होना चाहता I हूँ, should have zero expectation that others should call and greet me. और मेरे अंदर शून्य ये अपेक्षा होनी चाहिए कि और लोग मुझको कॉल करे और मुझे ग्रीट करे। Because I myself don't remember my birthdays sometimes. और क्योंकि कई बार मैं अपने खुद के जन्मदिन को याद नहीं रख पाता हूँ, But if I feel I am significant, I am somebody, और यदि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मुख्य व्यक्ति हूँ या बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, I'll expect and I'll note someone who did not call me and greet me. और तब मैं अपेक्षा करने लगूंगा और उसका ध्यान रखूंगा किस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके ग्रीट नहीं किया उस दिन। Because I think about myself, I am somebody, I am significant. I expect others to remember my birthday. और क्योंकि मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मुख्य व्यक्ति हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग मुझको फोन करके ग्रीट करें। So it's a wonderful thing to aim to think about ourselves as I am insignificant. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम अपने आप के बारे में ऐसा ध्येय सामने रखें कि हम अपने बारे में पूरी तरह से छोटा या शून्य समझे या अयोग्य समझे। In Matthew chapter 5, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय we read in verse 3, 3 वचन, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So that word poor in the spirit, और यहाँ पे लिखा है जो मन में दीन है या गरीब है, they are blessed and it is theirs the kingdom of heaven. वे धन्य और आशीषित लोग हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। That poor in the spirit, in amplified version it is written that those who rate themselves as insignificant. और यहाँ पे मन के दीन एम्पलीफाइड अनुवाद में इस लिखा है कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ही अयोग्य, छोटा या शून्य महसूस करते हैं। Means those who rate themselves as insignificant are blessed. और ऐसे लोग जो अपने आप को छोटा महसूस करते, अयोग्य जानते हैं, वैसे लोग धन्य हैं। And the kingdom of God belongs to them. और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So I think it's good to secretly check our own heart. और गुप्त रीति से अपने आप के, हमारे हृदय को, अपने आप को जांचना अच्छी बात है। Do we have thoughts that I am somebody? और क्या हमारे अंदर ऐसे विचार है कि मैं कुछ हूँ? Even things like I'm so many years I'm in the church. और ये भी हो सकता है कि बहुत सालों से मैं कलीसिया में हूँ, And we are part of the church and living with some expectation, some kind of expectation from और others. कलीसिया का भाग होते हुए किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा को रखते हुए हम जीवन को जी रहे हैं, To be served or to be greeted or anything like और that. ताकि हमारी सेवा की जाए, हमको अभिवादन किया जाए हमारे, या कोई भी और चीजें। But if you are really growing in the character of Jesus Christ, we will have zero expectation. लेकिन हम यदि यीशु मसीह के चरित्र की समानता में यदि बढ़ रहे हैं तो हमारे पास शून्य अपेक्षा किसी और से होगी। So I want to meditate that thought to remember myself as insignificant. और इस विचार पर मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपने आप को तुच्छ या अपने आप को छोटा मैं देखूं। Amen. आमीन। मुझसे जो प्रभु ने बात किया वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 21, वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि यू हैव नीदर पार्ट नॉर पोर्शन इन दिस मैटर, फॉर योर हार्ट इज नॉट राइट इन द साइट ऑफ गॉड. Repent therefore of this your wickedness and pray if God perhaps the thought of your heart and may be forgiven you. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. तो यहाँ पे ये जो मैंने वचन पढ़ा, यहाँ पे हृदय के विषय में लिखा है, और यहाँ पे हृदय के अंदर जो बांधा हुआ बंधन है, पॉइजन के द्वारा, बिटरनेस के द्वारा बांधा हुआ जो बंधन है, उसके बारे में ये लिखा है। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो इसके पिछले अध्याय में सेम वचन मैंने पढ़ा, उसका 7 वर्स 7 एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 39, वहां पे ऐसा लिखा है, उसके लास्ट भाग में ऐसा लिखा है, इन देयर हार्ट्स दे टर्न बैक टू इजिप्ट. तो पूरा जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर परमेश्वर हृदय की और विचारों की बात कर रहा है. तो जब मैंने देखा, अपने जीवन को परखना शुरू किया कि कई बार हमारे हृदय में जो
बिटरनेस और इनिक्विटी से जो बंधन बंधा होता है वो बंधन होता है, एक प्रकार का वो एक बाउंड किया होता है हमें शैतान ने, और हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन ये वचन ने, ऐसा मुझे लगा जब मैंने इस वचन को पढ़ा, ये कुछ और ही, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट को पढ़े तो पतरस एक व्यक्ति से ऐसा बता रहा रहता है कि वो व्यक्ति जो रहता है वो पैसे से परमेश्वर का गिफ्ट खरीदने का ट्राई करता है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अलग है। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो एक अलग ही रूप में ये वचन मेरे पास आया और प्रभु ने मुझसे बात किया और मेरे जीवन के कई क्षेत्र को दिखाया जहाँ पे बिटरनेस का जो बंधन है वो बंधा हुआ है, वहां से परमेश्वर मुझे छुड़ाना चाहता है। ये प्रभु ने मुझे दिखाया और रोशनी के समान आया, और यहाँ पर कहीं पर भी बाहरी रूप की बातें नहीं लिखी है। यहाँ पर जो कुछ लिखा है वो सब अंदर के हमारे हृदय के विचार के बारे में और अंदर के चीजों के बारे में लिखा है। तो ये सुन के मुझे ये भी बात को एहसास हुआ कि बाहर से चाहे हम कितना भी अच्छा हमारा टेस्टिमनी हो या अच्छा हमारा रेपुटेशन हो, लेकिन परमेश्वर निरंतर हर दिन हमारे हृदय को और हमारे विचारों को, हम क्या सोचते हैं, हमारे हृदय में कौन सी चीजें को ज्यादा हम महत्व देते हैं वो देखता है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, ये एंकरेजमेंट मैं देना चाहती हूँ कि हमें अपने थॉट्स को, हमारे विचारों को और हमारे हृदय में कौन सी बातें हम सोचते हैं, कौन सी चीजें हैं। जैसे आज हमने वचन में सुना प्राइड के बारे में हमने सुना कि भाई बता रहे थे कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने सोचा कि मैंने खुद ही इस चीज को बनाया है, और कई बार हम सोचते हैं हमारे रंग के ऊपर या फिर हमारी कोई काबिलियत के ऊपर या कोई चीजों के ऊपर हम वो एक इनिक्विटी होती है, वो एक हमें बांध देती है, वो एक बंधन से हमें शैतान बांधता है और हमें समझ में नहीं आता है, और जिसकी वजह से हम प्रभु में ग्रो नहीं कर पाते, प्रभु में बढ़ नहीं पाते। तो और हम बाहर से कितने भी सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ, लेकिन अंदर से परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर से कम होता जाता है और हम ढीले हो जाते हैं विश्वास में। तो परमेश्वर का धन्यवाद, ये जैसे वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, प्रभु ने मुझे मदद किया, और वहां पे ऐसा क्लियर लिखा है कि रिपेंट एंड टर्न टू गॉड दैट योर थॉट्स ऑफ योर हार्ट्स मे बी फॉरगिवन। तुम्हारे हृदय के विचारों को परमेश्वर माफ करे। फिर एक बार विचार के बारे में, मोटिव के बारे में, हृदय के बारे में यहाँ पे परमेश्वर जोर दे देकर बता रहा है। तो जो कुछ है विश्वास का जीवन, सबसे महत्वपूर्ण हृदय और हमारे विचारों के आधार पर और हमारी अंदरूनी जीवन के आधार पर है। इसलिए आखिरी वचन में बताना चाहूंगी, यीशु ने कहा कि यदि तुम अंदर से तुम्हारे पात्र को साफ करोगे, तो फरीसियों से कहा कि अंदरूनी पात्र को जब तुम साफ करोगे तो तुम बाहर से भी साफ हो जाओगे। तो सबसे पहले परमेश्वर हमें अंदर से साफ करना चाहता है, अंदर से शुद्ध करना चाहता है, जिसके द्वारा बाहर से भी हमारे अंदर से जो जीवन जो है वो अंदर से बाहर फ्लो होगा। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी। प्रभु का धन्यवाद और इन सारे वचनों के लिए। इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन में भी एक ज़रूरत को देख पाता हूँ कि कितनी अधिक ज़रूरत है मेरे जीवन के अंदर कि उस घमंड के स्तर से मैं नीचे आ सकूँ। 1-2 सप्ताह पहले मेरे ऑफिस के अंदर कुछ पेमेंट मेरे डिले हो रहे थे, क्लाइंट बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया उसमें, और मैंने मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब वो बहुत डिले हुआ, मेल लिखने के बाद भी नहीं हुआ, और वहाँ पर एक लड़के ने मुझे कॉल किया और उसको फिर मैंने बहुत डांटा, मतलब गुस्से में आके कि तुम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो। बट मैं जान रहा था कि मैंने क्रोध में आकर रूडली उस लड़के से बात किया, क्योंकि वो भी रिसेंटली ज्वाइन हुआ था और उसको समझ इतना नहीं था, और मैंने बहुत बात किया और उसको बहुत डांटा उसको, और डांटने के बाद फ़ोन रख दिया। वो सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे अंदर एक विचार आया कि मैंने शायद गलत किया, मैंने उस तरह बात नहीं करना, लेकिन मैंने वो दिन जाने दिया। लेकिन सुबह जल्दी में जब मेरी आंखें खुली 5:30 बजे, मुझे अंदर से वही विचार आ रहे थे कि तूने बहुत ही गलत रीति से उस लड़के से व्यवहार किया, तुझे इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अंदर से मेरा एक स्वभाव जो अंदर से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, वो उन्होंने गलत किया है, और मेरा मन कहीं ना कहीं तैयार नहीं था वो जूनियर लड़का जो अभी है उसको सॉरी बोलने के लिए, और मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। उसके उन विचारों के साथ जैसे दो मनुष्यत्व मेरे अंदर झगड़ रहे, एक कह रहा है कि सॉरी बोलना, एक नहीं, एक जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं उसने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, तभी काम होगा। फिर मेरे अंदर वो अनरेस्ट था। लेकिन जब मैंने उसको फिर बाद में शाम को सॉरी बोला, फिर उसने कॉल किया, अच्छे से हमने बात किया, और वो जैसे बोझ हट गया। मैंने देखा कि प्रभु मेरे अंदर कितना एक घमंड उस चीज़ को लेकर था कि प्रभु मैं एक जूनियर को जो अभी ज्वाइन हुआ उसको मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, उसकी गलती है।
तो आज के वचन से मुझे ये बात याद आई कि प्रभु मुझे व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे रहा था कि एक प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर उस स्तर में जहाँ पर घमंड है वहाँ पर मुझे और नीचा पिघलते जाना, और ताकि नम्रता मसीह यीशु की मेरे जीवन के अंदर बढ़ती जाए। और प्रभु का धन्यवाद। आए हम इस समय प्रार्थना करें और इस सभा को हम अंत करेंगे प्रार्थना के साथ। जो भी वचन हमने सुना है, हम अपने जीवन को जांचे आज परमेश्वर की हुजूरी में आते हुए कि प्रभु आज प्रभु मेरे जीवन के अंदर वो नम्रता कहाँ है और घमंड का स्तर आज मेरे जीवन में कहाँ है, क्योंकि अभिमानियों का तू सामना करता है पर दीनों को तू प्रभु अनुग्रह देता है। प्रभु धन्यवाद करते आए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाकर एक या दो बातें जिससे परमेश्वर ने आज हमसे बात की होगी, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे मन को कन्विक्ट कर रहा होगा कि उस क्षेत्रों को परमेश्वर के सामने लाकर के प्रभु मैं इन क्षेत्रों के अंदर प्रभु अपने आप से विजय नहीं पा सकता, अपने आप से नम्र दीन नहीं बन सकता, घमंड को मैं अपने आप से नहीं निकाल सकता। हाँ प्रभु, मेरे जीवन के अंदर भी प्रभु वो इच्छा है जहाँ पर मैं लोगों के द्वारा सीक्रेटली जाना जाऊँ या प्रोमिनेंस को देखूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हम एक मसीह के देह के रूप में आपके पास में आते हैं। प्रभु आपने हमें जो वचन दिया है उस वचन के आधार पर हमारे जीवन में काम करे। प्रभु हर एक घमंड भरी बातों को हमारे जीवन से, परिवार से, कलीसिया से दूर करे, ताकि हम और अधिक अनुग्रह में बढ़ते जाए। अनुग्रह जब होगा तभी हम पाप के ऊपर विजय पाएंगे। प्रभु हमारे सारे भाई और बहनों को प्रभु आप इस आने वाले सप्ताह, आने वाले दिनों में अनुग्रह दे, ताकि प्रभु इस वचन को जो हमने सुना है प्रभु, हम प्रभु कहीं पर भी अपने नाम को न खोजे प्रभु जी, पर यीशु के समान नम्रता को खोजे। हमारे अंदर मसीह के चरित्र को प्रभु हम अपने आप में देखने पाए कि प्रभु हम औरों को सर्व करने वाला, उनकी सेवा करने वाला हमारे अंदर मन हो सके। प्रभु तू हमें पवित्र आत्मा से भर, ताकि जो कुछ आज हमने सीखा है, सुना है, वो केवल एक ज्ञान न रहे प्रभु, लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक चाहत बनने पाए। हम पुकारे प्रतिदिन की प्रभु मुझे ऐसा जीवन चाहिए, मुझे प्रतिदिन के मेरे परिस्थितियों के अंदर, परिवार के अंदर प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझे भाने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।